بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ لمحہ ششم میں ہماری گفتگو کتاب المیراث میں، اور آج ہم کتاب المیراث کا آخری درس پڑھیں گے۔ چوتھی فصل کا آخری مسئلہ جو ہے وہ 14واں مسئلہ تھا۔ وہ 14واں مسئلہ مناسخات کے بارے میں تھا۔ مناسخات کا مطلب یہ تھا کہ ایک بندہ مر گیا، ابھی اس کی ملکیت تقسیم نہیں کی گئی، پھر دوسرا بھی مر گیا، تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں دوسرے کے بعد کوئی تیسرا بھی مرا یا نہیں مرا، کہتے ممکن ہے تیسرا بھی مر گیا ہو۔ یہ جو وارث بچ گئے ہیں، اب یا ان کی نسبت اس میت کی طرف ایک جیسی ہے، مثلا میت کے 5 بیٹے تھے، 5 میں سے 2 مر گئے، 3 مر گئے، باقی 2 بچے، یا کبھی ان کی جو ہے کیا ہے تھوڑا بہت نسبت میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک بندہ مرا، اس کے 2 بیٹے تھے، پھر 2 بیٹوں میں سے ایک مر گیا، پھر اس کا بھی بیٹا ہے، تو اب یہ جو پہلے میت کا پوتا ہے، یہ اپنے باپ کی تو ذاتی ملکیت ہوگی، وہ پوری اٹھائے گا، وہ اس میت کے بھائی کو نہیں ملے گی۔ باقی جو دادے کی ملکیت تھی وہ اس کے باپ کے حصے میں جو وہ پھر اس کو ملے گی۔ تو اس طریقے سے رشتہ تو بنوت کا ہے، لیکن فرق ہے۔ ایک یہ سمجھے چچا ہے، ایک بھتیجا ہے۔ چچا اپنے باپ کا یعنی دادا کا بیٹا ہے، اور بھتیجا اپنے بھائی کا، اپنے جو ہے کیا چچا کے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آج آپ کو یہ مناسخات کے مزید مسائل سنائیں گے، اس میں بھی ذرا میتھ کی آپ کو ضرورت۔ وہ تفصیلہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تفصیل ان نقول ہم کہیں گے لو مات بعض الورثۃ قبل قسمت ترکت الاولی، اگر پہلے میراث کے تقسیم کرنے سے پہلے کچھ ورثہ مر جائیں، اور صححنا الاولی، اور ہم نے صحیح قرار دیا ہے کس کو؟ پہلے والے کو، یعنی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تقسیم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فَإِن نَحَزَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي، نحز تو ویسے کام کی معنی میں ہے، یعنی اگر جو ہے کیا ہے وہ پہلی تصحیح صحیح واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ دوسرے میت کے حصے کے لیے، قسمت کے ذریعے، علی ورثتہ، ورثتہ ہی کی ضمیر جائے گی میت ثانی کی طرف، یعنی اس پہلے کی تقسیم دوسرے کے وارثوں پر بھی ٹھیک ہے، من غیر کسر، کوئی کمی نہیں آتی، صحت المسئلتان، تو پھر دونوں مسئلے صحیح ہو جائیں گے، یعنی پہلے کی تقسیم بندی بھی ٹھیک ہوگی، دوسرے کی بھی، من المسئلۃ الاولی، پہلے مسئلے میں سے۔ کزوجۃ، اوپر انہوں نے 2-3 مسئلے بتائے تھے، جیسے کزوجۃ ماتت، ایک عورت مر گئی، ان ابن و بنت، جب وہ عورت مری تھی تو اس کا بیٹا بھی تھا، اس کی بیٹی بھی تھی، لیکن یہ عورت کب مرتی ہے، بیوی کب مرتی ہے؟ بعد زوجہ، اپنے شوہر کے بعد۔ وخلف، اور یہ شوہر جب مرا تھا تو اس نے بیوی تو چھوڑی تھی، لیکن اس بیوی کے ساتھ ابنن و بنتن، اپنا ذاتی بیٹا اور بیٹی بھی چھوڑا تھا۔ یہ جو اوپر ہم نے کہا کہ عورت مرتی ہے اور اس کا بیٹا بیٹی، تو یہ اس شوہر کے نہیں، یہ کسی دوسرے شوہر کے ہیں۔ فالفریضۃ الاولی، تو جو پہلا فریضہ تھا، یعنی جو پہلے میت والی ملکیت تھی، ٹھیک ہے، اس کا جو جناب فریضہ ہے، اس کا جو ملکیت ہے، وہ 24 حصوں میں تقسیم کی جائے گی۔ بھائی 24 حصوں میں کیوں تقسیم آپ کریں گے؟ فرماتے اس لیے کہ بیوی کو تو سمن ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، اور 8ویں حصے کا سمن کا عدد کیا ہے؟ 8 ہے۔ باقی جو بچیں گے 7 حصے، وہ اب وہ بیٹی اور بیٹے پر تقسیم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بیٹے کو بیٹی کے ڈبل ملے گا، اگر بیٹے کو 4 دیتے ہیں تو پھر بیٹی کے لیے 3 بچتے ہیں، اگر بیٹے کو 5 دیتے ہیں تو بیٹی کو 2 بچتے ہیں، پھر بھی ڈبل والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں ہم 3 کو 8 میں ضرب کریں گے تو 24 حصے بن جائیں گے۔ اب 24 حصوں میں سے 8واں حصہ جو ہے کیا وہ بیوی کا ہوگا۔
24 का 8वां हिस्सा कितना होगा 3, और बेटे को 14 हिस्से मिलेंगे, ठीक है। 24 में से 3 गए, बाकी 21 बचे। अब 21 में से 14 बेटे को मिलेंगे, बाकी कितने बचे 7 वो बेटी को मिलेंगे, तो नतीजे में हिसाब बराबर हो जाएगा। तो 24 व नसीब ज़ौजत मिन्हा, और बीवी का हिस्सा जो है उन 24 में से कुछ इबारत नहीं है तो वो फिर आपको किताब से देखनी पड़ेगी। और बीवी का हिस्सा जो है जनाब उन 24 में से 3 होगा। तस्हो अला वलदैहा, अब ये जो बीवी के 3 हिस्से बनेंगे ये भी उसके वलदै पर यानी दोनों बच्चों पर ठीक हो जाएंगे। बेटे को 2 मिलेंगे और बेटी को 1। वहुना अल वारिसो वल इस्तिहकाक मुख्तलिफुन, यहाँ पर वारिस और इस्तिहकाक दोनों मुख्तलिफ है। इसलिए कि इब्न है और बिन्त है, ये दोनों शोहर के भी औलाद हैं, और फिर इस बीवी के भी इब्न और बिन्त है, वो फिर किसी और शोहर से हैं हो। वक़द ज़ौजिन, या कोई औरत मर गई उसका शोहर है, अरबअत इख्वतिन लिअबिन, और उसके 4 भाई भी हैं बाप की तरफ से। सुम्मा यमूतु ज़ौजु, फिर शोहर भी मर जाता है। अन इब्निन व बिनतैन, शोहर की भी जो है क्या है 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं। और अरबातु बनीन, या उसके 4 बेटे हैं। फतसिहुल मसअलतान मिनल ऊला, तो ये दोनों मसले सही हो जाएंगे पहले में से, वही है समानिया, वो 8। व इन लम यनहद नसीब सानी, और अगर दूसरे का हिस्सा जो है क्या है तकसीम नहीं हो सकता अपने उस मिल्कियत के हवाले से, तो फिर जो है क्या है फंजुर अनिस्बत बैन नसीब मय्यत सानी व सिहाम वरसतही, फिर तुम दूसरे मय्यत और उसके वरसा के दरमियान जो है देखो। फैनकान बैनहुमा विफकुन, अगर उनके दरमियान कोई विफक है तो फिर फजर बिल विफक बैन नसीब ही व सिहाम वरसतही, फिर तुम ज़र्ब करो उस तवाफुक और उन बच्चों के जो है क्या है मीरास में। ला मिन नसीब, खूब, तो जनाब खुद उस नसीब में जो है क्या है हम ज़र्ब नहीं करेंगे। फिल मसअलतुल उला, पहले मसले में। फमा बलग, तो जहां तक भी ये अदद पहुंच जाए, मसलन 3 को हम 6 में ज़र्ब करेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर भी ये पहुंचे सहत मिन हो, तो फिर सही हो जाएगा जनाब मिन हो उस तकसीम शुदा मसले से। जैसे अबवैन है, ठीक है, यानी मैयत के माँ बाप हैं और बेटा है। सुम्मा यमूतुल इब्न, फिर मैयत का बेटा भी मर जाता है, ठीक है। बेटा पहले मैयत का या दूसरे का खूब। वह यत्रुकु इब्नैन व बिनतैन, फिर ये बेटा जो है अपने 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ के जाता है। फल फरीदतुल उला सित्ततुन, तो पहला फरीदा तो 6 हिस्सों में तकसीम होगा, क्योंकि पहले मैयत के माँ बाप भी हैं जिनको सुदुस मिलना है और सुदुस का अदद 6 है। वह नसीबुल इब्न मिन्हा अरबातुन, और बेटे का हिस्सा जो है क्या उसमें से 4 होगा। वह सिहामो वरसत ही, फिर ये जो बेटा मर गया था, ठीक है, इसके वारिसों का सिहाम जो है क्या है वो 6 है, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं और जो है क्या है जनाब 2 बेटियां, तो 2 बेटियां 1 बेटे के बराबर हैं, तो नतीजे में 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 2 हिस्से बेटों को देंगे, 1 हिस्सा बेटे को देंगे। तो वाफिक नसीबुहुम बिनिस्फे, नतीजे में जनाब ये जो 4 हैं 2 बेटे और 2 बेटियां, इनका हिसाब इनका नसीब आधे तक पहुंचेगा। वतुज़रबु सलासतुन, तो नतीजे में 3 को ज़र्ब किया जाएगा। विफ़कल फरीज़त सानिया, ये दूसरे फरीजे के लिहाज से, दूसरे की मिल्कियत की तकसीम के लिहाज से फिर सित्ततिन, तो हम 3 को 6 में जब ज़र्ब करेंगे तब लोगों समानियत अशर या 18 हिस्सों तक पहुंच जाएगा। वह मिन्हा तस्सिहुल फरीजतान, फिर जब 18 हो जाएगा तो ये फिर फरीजे दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि अबवैन को जो है क्या है जनाब 6 हिस्से मिलेंगे। कितने हिस्से मिलेंगे? 6 हिस्से। क्यों? इसलिए कि ये 6 हिस्से जो हैं ये छठा हिस्सा है 18 के। भाई 6 हिस्से छठा कैसे होंगे भाई? 3 माँ के 3 बाप के ना, तो 18 का छठा हिस्सा 3 है, 3 हिस्से माँ को दिए, 3 हिस्से बाप को, 6 हिस्से निकल गए, बाकी बचे 12। तो हर मुज़क्कर को 4 हिस्से मिलेंगे
नतीजे में 2 मुज़क्कर के हो गए 8 हिस्से और हर मोनस को जो क्या है 2-2 हिस्से मिलेंगे। तो इस तरीके से तकसीम बंदी ठीक हो जाएगी। वह का अखवैन, और जिस तरीके से कोई बंदा मरता है, ठीक है, ये भी जो है जनाब मिसाल है किसकी, विफ़्क है, जो है क्या है मुआफ़िकत है दूसरे मैयत के भी वारसों के हिस्से में। बिन उम्मिन, दोनों भाई जो है वो माँ की तरफ से हैं, वह मिसलुहुमा, और इन्हीं 2 भाइयों की तरफ मिन अबिन, बाप की तरफ से भी 2 भाई हैं, और मरने वाली औरत वह ज़ौजुन, और उस औरत ने अपना शोहर भी छोड़ा था। वह मात ज़ौजु, फिर उस बीवी की मिल्कियत तकसीम नहीं हुई, फिर उसका शोहर मर गया। अन इब्निन व बिनतैन, फिर उस शोहर ने एक बेटा छोड़ा था और 2 बेटियां छोड़ी थी। तो ये बेटा और बेटी उस बीवी से नहीं, किसी और बीवी से हैं। फल फरीज़तुल ऊला इस्ताशरा, तो पहले फरीजे को, जो पहले वाले मैयत था उसके फरीजे को हम जनाब देख रहे हैं कि वो 12 हो रहा है। क्यों? इसलिए कि शोहर का आधा हिस्सा है और आधे का अदद जो है 2 है, और माँ के तरफ से जो भाई थे उनको सुलस था, और सुलस का अदद जो है क्या है जनाब 3 है, और 2 को जब आप 3 में ज़र्ब करेंगे तो 6 हो जाएंगे। फिर जो है क्या है जनाब इन 6 को आप 2 में ज़र्ब करेंगे, क्योंकि वो भाई बाप वाले 2 थे, तो नतीजे में 12 हिस्से जो है क्या है ये यहां पर निकल आएंगे। मखरज निस्फ, निस्फ का मखरज वसुल से, और सुल्स का मखरज सुम्मा मजरूबु, फिर ये 6 था, फिर इसको हम ज़र्ब करेंगे 2 में। क्यों? ले इनकिसार हा अला फरीकिन वाहिद, इसलिए कि ये जो फरीजा था ये एक फरीक पर कम हो रहा था। क्यों? इसलिए कि वरास इसमें ज्यादा थे, उसमें से निस्फ तो शोहर का था, सुल्स जो है क्या वो बरादरान उम्मी का था, और 2 सुल्स जो है क्या वो बरादरान अभी का था, तो तकसीम सही नहीं हो रहा था। वल अखवान लिल अब, वो फरीक वाहिद क्या था, जो बाप के 2 भाई थे। वह बैन नसीब ज़ौजे मिन्हा, और कहते हैं कि जनाब कसर हो रहा था शोहर के हिस्से में, मिन्हा उस पहले फरीजे में से। वह सित्ततुन, वो जो है शोहर का हिस्सा कितना था 6 था। वो फरीजत हु, और जनाब उस एक बेटे और 2 बेटियों का फरीजा क्या था वो 4 था। तवाफिक बिनिस्फ, फिर 4 जो है कि निस्फ के लिहाज से मुआफिक है, यानी उसके 2 निकालेंगे। फतुज़रबुल विफ़्क़ु मिनल फरीज़ते, फिर उस फरीजे में हम वो विफ़्क़ को जो क्या तकसीम करेंगे, वह इस्नान फिर इस्ना अशर 12 में, 2 को 12 में ज़र्ब करेंगे, तब लोगो अरबअत व इशरीन, तो ये 24 तक पहुंच जाएगा। वह मिन हो तसिहुल फरीज़तान, जब 24 हो गया तो फिर दोनों फरीजे जो है क्या है वो सही हो जाएंगे। कैसे सही होंगे इस पर जरा तवज्जो करनी है, ये इबारत में नहीं, मैं खारिज से बता रहा हूं। ये कैसे सही होंगे? फरमाते हैं कि जनाब मैयत अव्वल का फरीजा और मैयत सानी का फरीजा, शोहर को आधा मिलेगा, वो 12 हिस्से हैं, और ये 12 हिस्से जो हैं क्या है फिर दूसरे वारसों में भी तकसीम करें तो सही हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस मर्द का जो बेटा है उसको 6 हिस्से मिलेंगे, ठीक है, और 6 हिस्सों में फिर जो है क्या है जनाब 2 बेटियां थी, तो 3 हिस्से उस बेटी को और 3 हिस्से उस बेटी को, और दूसरा जो आधा था वो बरादरान उम्मी को मिलेगा, वो 4 है, हर एक को 2-2 मिलेगा। बाकी जो 2 सुल्स हैं वो कलाल अभी को मिलेंगे, वो 8 हैं, हर एक को 4-4 जनाब मिलेंगे। खो वलो लम यकुन बैन नसीब सानी व सिहामी विफ़क़ुन, अगर दूसरे के हिस्से में मैयत सानी के नसीब में और उसके जो सिहाम है मैयत सानी के वारिसों के उनमें मुआफिकत न हो, ज़रब तल मसअलत सानिया, फिर तुम ज़रब करोगे दूसरे मसअले को, यानी दूसरे की मिल्कियत को भी फिल उला पहले में, फमरतफ़अ, तो जितना भी ऊपर जाए, सहत मिनहुल मसअलतान, फिर उसमें दोनों मसअले सही हो जाएंगे, यानी पहले मैयत का भी मसला सही हो जाएगा, दूसरे का भी। कमा लौकान वरसतुल इब्न फिल मिसाल अव्वल, जैसे कि पहली मिसाल में बेटे के वारिस फिर 2 बेटे हैं और बेटी हो। फ़इन सिहामहुम
बेतहकीक 2 बेटों और 1 बेटी के हिस्से कितने होते हैं? 5 होते हैं, क्योंकि बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, बेटों को 2 हिस्से मिलेंगे। तो बायन ये जो 5 हिस्से हैं ये मुबायनत रखते हैं नसीब व मुवर्रिस हिम। इनका मुवर्रिस कौन था? इनका बाप, जो पहले मैयत का बेटा था, उसका तो पहले फरीजा में से 4था हिस्सा था। फतुज़रबु खम्सतुन फी सित्ततिन, फिर 5 को 6 में ज़रब करेंगे तब लोगो सलासीन, ये 30 तक पहुंच जाएगा। वकज़ा लौ कान वरसतु ज़ौज फिल मसअलति सानिया, फिर कहते इसी तरीके से दूसरे मसअले में जब वो मैयत 2 भाई उम्मीद छोड़कर जाए और 2 भाई अभी छोड़कर जाए और एक जो है क्या वो शोहर छोड़कर जाए, ठीक है, फिर वो शोहर जो है 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ता है। फतुज़रबु खम्सतुन फी इस्नाशर, फिर 5 को, क्योंकि 2 बेटे और 1 बेटी तो ये 5 हो गए, इसको फिर वो पहले वाली मसले 12 में ज़रब करेंगे। 5 12 को जब ज़रब करेंगे तो ये 60 हो जाएंगे। वलो कानतिल मुनासखात अक्सर मिन फरीदतैन, अगर मुनासखात 2 फरीदे से ज्यादा है, अभी तो हम 2 को मैयत फर्ज करें ना, बाप मर गया, उसके 2 बेटे थे, फिर उनमें से 1 मर गया, फिर तीसरा ये है कि उस मरे हुए के बेटे का भी बेटा मर गया, बेनमात बाद वरसतल मैयत सानी कबल अल किस्मत, मसलन दूसरे मैयत के भी कुछ वारिस मिल्कियत की तकसीम से पहले मर गए, और बाद वरसतल ऊला, या पहले के अव्वल के भी मर गए, इनकसम नसीब सालिस, फिर तीसरे मरे हुए का अगर हिस्सा तकसीम वाला वरसत ही उसके वारसों पर बेसेहत और कोई कमी बेशी नहीं हो रही, फिर तो बहुत अच्छा है। व इल्ला, लेकिन अगर तीसरे के वरसा में कमी पेशी हो रही है, अमिल तफी है, तो तुम तीसरों में भी वही करोगे कमा अमल तफिल मरतबतल ऊला, जैसे आपने मर्तबा ऊला में किया। वहां कदल फर्ज कसरत तनासुब, फिर अगर चौथे में भी कोई मर गए तो फिर उसमें भी हम देखेंगे अगर मिल्कियत बगैर कसर के तकसीम होती है तो ठीक, नहीं तो फिर उसमें भी फिर इस तरीके से हम जनाब ज़रब वगैरह करेंगे। फ़इन्नल अमल वाहिदुन, कहते हैं तनासुख का अमल एक है, चाहे 2 पार्टियां मर जाएं, 3 मर जाएं, 4 मर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी किताबुल मीरास खत्म हो गई और अगले दर्स में किताबुल हुदूद शुरू होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।